Good morning, all of you. On the behalf of Oscar Public School, I welcome you all to the online classes. My name is Namisha. I am appointed to be your social science teacher. I hope you all are fit and fine at your homes. I am so excited to meet you all on school opening. We are going to have a fabulous school year full of fun and learning. But right now, we are going to start our study through online classes as it is not allowed to go to school due to corona pandemic. Well, we are just going to learn so many new and exciting things together. I welcome you all again and let us start today's class. So in today's class we are just going to start chapter number 2. This chapter number 2, and what is the name of this chapter? Latitudes and longitudes. Repeat after me. Latitudes and longitudes. Again, this is your chapter number 2, latitudes and longitudes. So before I am going to start this chapter, we can just understand few things. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी कैन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज दिस, whenever we are reading this chapter you can open your textbook and take the pencil. आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे और साथ में एक पेंसिल भी रखेंगे एंड अंडरलाइंस द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑल्सो. If you have any problem in a particular word, so you can check from the dictionary. अगर आपको किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप उस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और सबसे पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे एंड देन उस वर्ड को आप डिक्शनरी में फाइंड करेंगे. इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी, just go to the Google, write down the word, what is the meaning of this word. So the Google will help you to understand that word. Okay, and again you have problem in a particular word, so you can ask from the query time. Got it? And again, very important thing beta, this video is very important for you, so it is important you can watch this video at least thrice. कम से कम आपको 3 times ये वीडियो ज़रूर देखना है. ओके, 1 टाइम में शायद कुछ चीज़ें समझ आए, नहीं भी आए. इसको आप डाउनलोड करके इसको 2 टाइम देखिए, 3 टाइम देखिए. देन आफ्टर द 3rd टाइम आपको चैप्टर ईजिली समझ आएगा. एंड वन मोर थिंग बेटा, यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, सो वी कैन आई एम जस्ट टीचिंग यू इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी कैन जस्ट go through the bilingual. हम bilingual भी होंगे to understand few things. Okay, but focus on the English words. Got it? So we can start. So in this chapter we can take a little introduction. What is latitude and longitudes? So beta, latitudes and longitudes are the system of lines. ठीक है, अभी तक आपने ये वर्ड्स नहीं सुने होंगे, बट दीज आर द सिस्टम ऑफ लाइन्स यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ. आप कहते हो कि यू आर जस्ट लिविंग इन इंडिया एंड सम पीपल आर लिविंग इन अमेरिका, सो हम उसकी लोकेशन को एग्जैक्ट कैसे जान पाते हैं कि वो कहाँ रहता है, कितनी डिग्री पे रहता है, सो एंड सो. या हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड latitude. So in this chapter we are just going to this only. So we have learned the earth, it's a spherical in shape. What is the shape of the earth? जिसको हम spherical shape और geoid shape भी कहते हैं. Wait, we have to learn that earth is a spherical in shape. The globe is also designed in the same way. Have you seen that globe? आपने globe देखा है? And tell me student, what is the globe? Globe is a small model of the earth. हमारी अर्थ का एक छोटे से मॉडल को, क्योंकि इतनी सारी अर्थ को तो हम नहीं देख पाते, सो ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द ग्लोब इन अ प्रीवियस चैप्टर. हमने ग्लोब को प्रीवियस चैप्टर में भी
पढ़ा है. Got it? We also know the earth rotates on imaginary fixed line. It's called axis. बेटा it is very important कि हमें ये जानना what is that axis. हमने last chapter में भी पढ़ा था. So what is the axis? The earth rotate on imaginary. Imaginary means just in imagine. ऐसा actual में नहीं है. Imaginary means होता है जो कि actual में नहीं हो, imagine किया हुआ हो, काल्पनिक हो. ठीक है. Our earth, it's rotate on a imaginary fixed line called the axis. उस imaginary lines को हम क्या कहते हैं? Axis. हमारी earth rotate करती है. आपको पता ही है कि earth rotate and revolution होता है earth में. We have already read about this in a previous chapter. So earth rotates on its fixed axis. This axis is slightly tilted at the angle of 23.5 degree. Have you seen this in picture? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है. सो अर्थ इन अ वन रोटेट, एक रोटेट वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? अर्थ अपना वन रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? सो बेसिकली हमने हमेशा से पढ़ा है इट टेक्स 24 आवर्स. हमने हमेशा यही पढ़ा है ना कि ओनली 24 आवर्स अर्थ अपना वन रोटेशन लेने में 24 आवर्स लेती है. सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स. ओके, बट एक्चुअली अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.1 सेकेंड्स. गॉट इट? इसको हम अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स कहते हैं, बट इट टेक एक्चुअली 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.1 सेकेंड्स. ठीक है. ये आगे कैसे बढ़ता है, कैसे हम लोग फरवरी में 20 आफ्टर अ लीप ईयर एक डे बढ़ जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, सो अभी हम इसको इतना ही रोकते हैं. सो वी कैन बैक टू द thing. See, this is the globe. Have you seen that it is a bit tilted? Tilted means थोड़ा सा झुका हुआ. ठीक है, थोड़ा सा तिरछा. See, अगर हम पॉइंट देखें तो इसका सेंटर that is here is a center and here is also a center. So n, आप कहोगे मैम ये एन और एस तो हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ. सो आई एम जस्ट राइटिंग देयर दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल. दीज आर द टू पोल्स ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ के टू पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. बच्चे थोड़ा सा टिपिकल है बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप इसको 3 टाइम्स देखेंगे. गॉट इट? सो आवर अर्थ, हैव यू सीन दिस पिक्चर? सी, दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन. आप अभी नीचे वाली पिक्चर को नहीं देखेंगे, अभी आप एग्जैक्ट ऊपर वाली पिक्चर को देखेंगे. सो दीज आर द आवर अर्थ एंड इट बिट टिल्टेड. टिल्टेड मीन्स थोड़ी तिरछी झुकी हुई है. दैट इज अपर वन इज नॉर्थ पोल एंड द साउदर्न मोस्ट इज द साउथ पोल. ऊपर वाला नॉर्थ पोल एंड देन डाउनवर्ड इज साउथ पोल. ठीक है. So one more thing, the northernmost part of the axis, the northernmost of the part is axis, that is North Pole, and the southernmost part of the axis is called the South Pole. North Pole and South Pole. One more line I have also draw here, that is a prime meridian. इसके बारे में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे. बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आप कहोगे कि मैम हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो दे दिया, ईस्ट और वेस्ट पोल कहाँ देखेंगे? सो ईस्ट में दिस इज़ द, ये प्राइम मेरिडियन, दिस इज़ कट इन द, दिस इज़ ऑल्सो अ इमेजिनरी लाइन. दिस इज़ द ईस्ट पार्ट एंड दिस इज़ द वेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, बट हम अर्थ इज़ इन सर्कल, आप देखते हो एक बॉल की तरह है. सो अभी हम सिर्फ इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में बात करेंगे. गॉट इट? टू फाइंड द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस ऑफ ऑन द ग्लोब वी यूज सर्टेन इमेजिनरी लाइन्स. हमें किसी भी अर्थ पर लोकेशन जानने के लिए वी कैन जस्ट विद द टेक द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन्स. हमें इन्हीं इमेजिनरी लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी.
दे लाइन्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. ये लाइन्स मैंने क्या कहा, दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन. ये इमेजिनेशन में हमने बना रखी है, एक्चुअल में ये ऐसी कोई भी लाइन रियलिटी में नहीं है. और बट अ सर्कल ड्रॉन राउंड द अर्थ, दे आर वेरी यूजफुल टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ और टू गिव डायरेक्शन अबाउट अ प्लेस. किसी भी डायरेक्शन को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता हो, तभी हम अर्थ पे किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. गॉट इट बच्चे? नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द इक्वेटर इज़ एन ऑल्सो इमेजिनरी लाइन. दिस लाइन इज़ अ बिल्कुल अर्थ के बिटवीन में. दिस इज़ इक्वेटर. ओके, इक्वेटर मीन्स इक्वल. इक्वल मीन्स इट डिवाइडेड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. आपने मैथ्स में सर्कल पढ़ा है, उसमें एक डायामीटर पढ़ते हो आप, जो क्या करता है, आपके सर्कल को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है. सेम एज दैट इक्वेटर इज़ अ लाइन. दिस इज़ ऑल्सो अ इमेजिनरी लाइन. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ इमेजिनरी लाइन राउंड द अर्थ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. यानी कि इसका यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है, इसका यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल. इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल एंड इट इज़ ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड. अभी हम पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ दैट लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स, ये पैरेलल वर्ड आपने मैथ्स में सुना होगा. पैरेलल आर द सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल मीन्स लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स अगर हम शॉर्ट में याद करने की कोशिश करें, सम स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस. मैम, हॉरिजॉन्टल लाइंस इज़ अ लैटिट्यूड और वर्टिकल लाइंस इज़ अ लैटिट्यूड. सो लैटिट्यूड मीन्स, इसको आप वर्ड से बना लो, बहुत छोटा वर्ड है लैटी. ठीक है, लैटी मीन्स लेटी हुई लाइन्स. एक छोटा सा हम ट्रिक यूज़ करते हैं. द लाइन्स हु आर हॉरिजॉन्टल लाइन्स. हॉरिजॉन्टल मीन्स लेटी हुई लाइन्स. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द ग्लोब, द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स इज इक्वल. सी दिस, दीज आर द, अगर हम कहें तो इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड. इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड. ठीक है, ये लेटी हुई लाइन है, दैट इज अ लैटिट्यूड. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द लैटिट्यूड. सो इसी पिक्चर को देखते हुए करेंगे आगे. सी, वी हैव ऑल्सो डन दिस. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. सो इक्वेटर डिवाइडेड्स द टू अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ. ठीक है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द अदर वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर. ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. सो दीज आर द लैटिट्यूड्स. द सर्कल ऑफ दिस ग्लोब्स आर पोल, दे नेवर टच अक्रॉस अनदर. बेटा पैरेलल लाइन्स क्या होती है? पैरेलल लाइन डू नॉट कट ईच अदर और डू नॉट टच ईच अदर. ये वो लाइंस है जिनको हम कितनी भी आगे बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं करती. दीज आर द पैरेलल लाइंस. ओके, लाइक अगर हम इस वाली लाइंस में देखें, इस ग्लोब्स में देखें, तो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ऊपर जाकर टच हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. तो दिस इज़ नॉट अ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड में पैरेलल लाइंस हैं. पैरेलल मीन्स आप इस लाइंस को कितना मर्जी आगे बढ़ा लो, इन्फिनिटी तक आगे एक्सेस आगे बढ़ाते जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइंस. ओके, सो द लैटिट्यूड और पैरेलल दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. ये मैंने आपको बताया अभी, ये क्या करती हैं, ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटर. अगर हम कहें, मैंने आपको बताया कि इक्वेटर इज़ ऑल्सो अ लैटिट्यूड लाइन. ठीक है, एंड द लैटिट्यूड और अ पैरेलल दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड द इक्वेटर.
इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड. अगर हम कहें विच इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर. सी इन दिस पिक्चर, ये सारी लाइंस जा रही हैं और ऊपर जाकर छोटी हो जाती हैं, यहाँ पर नीचे आके छोटी हो जाती हैं. सो अगर हम कहें विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ. इसको इक्वेटर को ही हम ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ भी कहते हैं. एट द सेम पॉइंट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर द पैरेलल बिकम्स जस्ट द पॉइंट इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सर्कल. सी दिस, दीज आर, ये लाइन्स अभी ऊपर जाती जा रही हैं, सेम एज यही लाइन नीचे भी आती जा रही हैं. गॉट इट? सी इन दिस पिक्चर, these divided into two equal half. The upper one is northern hemisphere, the downward is southern hemisphere. The equator is marked on the globe as 0 degree latitude. मैंने हमेशा आपको बताया ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है. यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इसकी द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाई नॉर्थ, इट्स कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड दैट पार्ट lie on down, that is called a southern hemisphere. Okay, so now we are also discuss about what is the importance parallels of latitude. बेटा वैसे तो अगर हम कहें तो that is a total, अगर हम देखें तो टोटल कितनी पैरेलल लाइंस हैं, बेसिकली दैट इज़ a 181 latitudes. How many latitudes are there? 181. Okay, that is a 181 parallel lines in latitude. Okay, and the which is the important latitude, that is the equator. Apart from the equator there are another important latitudes we have to discuss in. See in this picture, आपको ये पिक्चर से समझ आएगा. See again I am saying this is the north pole and this is the south pole and this is the 0 degree equator or a latitude. So there another equator, another latitude, that is a tropic of Cancer. जैसे इसका 0 डिग्री था ऐसे ही इसका 23.5 डिग्री नॉर्थ है. आफ्टर दैट आर्कटिक सर्कल, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड डाउनवर्ड यू कैन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, and another one is Antarctic circle, that is 66.5 degree south. So these are the another latitudes are there. So we can just read this on proper way. Beta, this picture you have to draw in your नोटबुक. आपको ये पिक्चर अपने इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑन अ अर्थ अपने नोटबुक में बनाना है. ओके, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. बेटा नोबडी विल यूज़ द पेन. आप इसमें पेन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें पेंसिल का ही यूज़ करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दिस कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड. सी इन दिस, Tropic of Cancer, it's a 23 degree north of the equator. Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south of the equator. Arctic Circle is a 66.5 degree north of the equator. Antarctic Circle is 66.5 degree south of equator. The Arctic and Antarctic Circle are called polar circle. Poles पे है ना, क्योंकि ये नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल ऑन नॉर्थ पोल and Antarctic circle on south pole. So these are the pole circles. इसे हम pole circles भी कहते हैं. And they both are called the frizz zone also. ये frizz zone भी है. frizz मतलब जमे हुए zones. Okay? You can know that, आपको पता है हमारी अर्थ जब हम वी आर लिविंग इन इंडिया, सो ये जो ट्रॉपिक ऑफ आपकी कैंसर है ये हमारे इंडिया से ही होकर गुजरती है. एज यू नो दैट, आपने देखा होगा मैप के अंदर एक बीच में एक लाइन जा रही होती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पैरेलल्स. इन दिस
There are 181 parallels which are 19 north and 19 south. That is, see in this, the characteristic features of parallels. There are 181 parallels of which is a 90 north equator and 90 south, including the, see in this picture, these are the equator and 90 lines in above and 90 line is down. So you can say this, मैम 90 plus 90 is 180. तो 181 कैसे हुआ? सो एक इक्वेटर भी तो है. सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आर 181. Parallel are complete circle except north pole and south pole. The equator form a longest circle. मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस कहाँ तक जा रही है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और आपकी एक सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर. ऑल पैरेलल लाइंस आर लोकेटेड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. यानी कि इन सब आपस में इक्वी डिस्टेंस मीन्स सभी का इक्वल ही डिस्टेंस है. ऐसा नहीं है कि एक लैटिट्यूड छोटी है दूसरी लैटिट्यूड बड़ी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है. नो, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस. ओके, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वी डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस. द लेंथ ऑफ पैरेलल कीप डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल. यानी कि जैसे जैसे हम पोल पे जाएंगे इनकी लेंथ जो है वो कम होती रहेगी. ये ग्रेटेस्ट है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी. डिस्टेंस आर इक्वल बट लेंथ हमेशा डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज मीन्स कम हो रही है. दीज लाइन्स नाइदर टच और क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट. मैंने आपको ये बताया कि ये लाइंस कितना भी इसको आप एक्सिस कर दो, आगे पहुंचा दो, लेकिन कभी भी ये आपस में टच नहीं होंगी. Okay, so we can just rest the class here only. This is your homework. The first is your homework. You can draw this. You can draw one globe picture which have you already made in previous chapter. You can just made this important latitudes of Earth. ये आप अपनी notebook में बनाएंगे. And this word zone you have to write these two keywords in your notebook. Thank you so much students, and again I am saying beta just watch full video.